Hello everybody, a very good morning to all of you. This is Hrusikesh Sahu from Odisha Adarsha Vidyalaya, Begana Korai, Jajpur. So, what we will learn today? Today we will start a new topic from the chapter Working of the Institution, and the topic name is The Decisions Maker. So, before start the topic, we have to remember what we had discussed in our last video. So what we had discussed in our last video, we had discussed about the office memorandum. What is office memorandum? How a office memorandum is implemented and how an office memorandum is issued. We had also discussed about the Mandal Commission, why the Mandal Commission was appointed, who appointed the Mandal Commission, who is the head of the Mandal Commission, and what are the objective behind the appointment of the Mandal Commission. We had also discussed about that, and after that we had also discussed when Janata Dal formed the government and VP Singh became the Prime Minister of the India, and how they implement the recommendation, which recommendation was given by the Mandal Commission. So we had already discussed all about this topic in our last video. So today we will discuss about the topic the decision maker. तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि मंडल कमीशन जो सेटअप हुआ था, द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1979 एंड in the year 1980 when Mandal Commission submit his report to the government, he suggested different measures for the upliftment of the socially and educationally backward classes. So after that, जैसे कि हमने देखा कि जब जनता दल की सरकार आई, जनता दल ने जैसे कि अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया था दैट इफ देयर पार्टी इज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट देन डेफिनेटली दे विल इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन. And eventually the Janata Dal party formed the government, get the majority number of seats in the general election, formed the government, and VP Singh became the prime minister. And after the prime ministership of VP Singh, जो कि केस जैसे हमने देखा कि मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था कि 27% सीट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व रखा जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, तो उस रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था. लेकिन सवाल ये है, क्या ये इतना आसान था कि अकेले VP सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, उन्होंने डिसीजंस ले लिया कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? नहीं. तो ये लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, जो भी ऑफिस मेमोरेंडम होता है, ऑफिस मेमोरेंडम कैन नॉट बी इशूड इन ए सिंगल डे. there is a long chain of event, there is a culmination of chain of event behind them. तो उसके पीछे बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है. जब कोई ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया जाता है, जब कोई लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसके पीछे बहुत लंबे समय लगता है और बहुत सारे इवेंट्स भी होता है. So the question is that who are the decision maker? Who take the decision that the recommendation of the Mandal Commission will be implemented? तो ये decisions लिया था किसने? ये जो कि हमारा questions है. तो देखो आज का टॉपिक हमारा यही है that the decision maker. We will discuss about those people who are involved in this decision making process. So देखो just let's start the topic. The officers was merely implementing the instruction. So we saw that the secretary of the Department of Personnel and Public Grievances and Pension, तो उनके इस डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने इस ऑफिस मेमोरेंडम को इशू किया था दैट फ्रॉम August 13, 1990 27% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर दोज बिलोंग्स टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द गवर्नमेंट जॉब्स. तो क्या ये जो सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, उन्होंने ये डिसीजंस लिया था कि उन्होंने ये ऑर्डर इशू कर दिया और ऐसे ही डायरेक्टली एक ऑर्डर इशू होने के बाद ये जो लॉ था वो इम्प्लीमेंट हो गया? नहीं. उन्होंने शायद क्या किया है, द ऑफिसर वाज मियरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन विच वाज गिवन टू देम. तो उन्हें इन ऑफिसर को, उन सेक्रेटरीज को वही जो डिसीजंस दिया गया है, उन्होंने बस वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है और उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया था, जो कि एक ऑफिस मेमोरेंडम, एक ऑफिस ऑर्डर उन्होंने इशू किया था.
देर आर सेवरल पर्सन्स बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो उसके पीछे ये जो डिसीजंस लिया गया था उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं है। देखो वो कह रहा है देर वॉज ए चेन ऑफ मेजर फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन। सो एज आई टोल्ड यू देर आर सेवरल पर्सन्स इन्वॉल्व बिहाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिहाइंड दिस डिसीजन। तो ये जो डिसीजन लिया गया था उसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं था बल्कि बहुत सारे व्यक्ति इन्वॉल्व थे। सच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द प्राइम मिनिस्टर, the parliament and the both houses of the parliament, that is as you know that there are two houses of the parliament, that is one is the Lok Sabha and another one is the Rajya Sabha. So both the houses of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, is also involved in this decision making process. That means Rajya Sabha and Lok Sabha are not involved, but the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha is involved in this decision making process. The Prime Minister VP Singh is also involved in this decision making process, and the highest authority of the country, as you know that the highest authority of the country is known as the president. The president of India is the highest authority of the country and the head of the state. So head of the state होने की वजह से उन्होंने president भी इस decision making process में शामिल थे, and as a head of the government, prime minister is also involved in this decision making process, and the members of the parliament, that means both the members of the Lok Sabha and Rajya Sabha, is also involved in this decision making process. So this office memorandum was the culmination of long chain of event. तो जैसे मैंने कहा कि ये एक long chain of events इसमें involved था, ये कोई जो decisions लिया गया था, that decisions was not taken in a single day, ये एक ही दिन में ये decisions नहीं लिया गया था, इसके पीछे बहुत सारा event हुआ था. So what are the events behind this decision मेकिंग प्रोसेस? क्या क्या इवेंट्स इसके पीछे हुआ था वो कह रहा है, देखो क्या था, हाउ what are the events is involved in this decision making process. First, the president addressed to the parliament about the implementation of the recommendation of the Mandal commission. As you know that after general election, जब general elections होता है, after general election जो कि क्या होता है, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट किया जाता है, एक पार्लियामेंट की अधिवेशन वहां पर स्टार्ट होता है, पार्लियामेंट का मीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, एंड एट दैट मीटिंग द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन. तो प्रेसिडेंट वहां पर पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट को वो क्या करते हैं, जो कि एड्रेस करते हैं कि सरकार चाहता है, जो सरकार उस टाइम पर थी, जनता दल की जो सरकार थी, सरकार चाहते हैं कि वहां पर क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा, मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था और जनता दल की मैनिफेस्टो में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को सरकार वहां पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ऐसा जो कि एड्रेस में प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में पार्लियामेंट को इन्फॉर्मेशन दिए. सेकेंड, यूनियन कैबिनेट टू के फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन. सो यूनियन कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, the prime minister and all the cabinet minister took a formal decisions to implement the recommendation. That means all the prime minister as well as all the ministers is also involved in this decision making process. तो उन्होंने एक फॉर्मल जो कि डिसीजंस ले लिया कि इसी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ये डिसीजंस ले लिया कि वहां पर ये रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए. Prime Minister informed the Parliament about the decision. So after that, the Prime Minister informs the Parliament about the implementation of the Mandal Commission's recommendation. तो पार्लियामेंट की जो दोनों हाउसेस थी, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उसके जो रिकमेंडेशंस को वो क्या करना चाहते थे, इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, तो इसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में दोनों हाउसेस को उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा दिया, इन्फॉर्मेशन भी दे दिया. एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज टेकन ओवर बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. तो जैसा प्रोसेस होता है, as you know that several process are there behind when government want to implement a law or government want to pass a law in the parliament. So पार्लियामेंट की दो हाउसेस में इस रिकमेंडेशन को पास किया गया. पार्लियामेंट में पास होने के दोनों हाउसेस में, बोथ लोकसभा और राज्यसभा में, ये जो कि रिकमेंडेशन पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा गया और प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलने के बाद क्या हुआ, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्क वाज टेकन ओवर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड
कन्वेंशन। तो ये काम जो से कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को दे दिया गया। एंड आफ्टर दैट वी सॉ दैट हाउ द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड एन office memorandum regarding the implementation of the 27% seats reserved regarding the implementation of the Mandal Commission's recommendation, where 27% of seats is reserved for the socially and educationally backward classes in the government jobs। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स था कि प्रेसिडेंट पहले पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट के बाद यूनियन कैबिनेट जो कि फॉर्मल डिसीजंस लेती है उस रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर प्राइम मिनिस्टर दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि इसी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर दो हाउसेस में इस लॉ को, इस बिल को पास किया जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिया जाता है, एंड एट लास्ट जाकर क्या होता है, एट लास्ट the Department of Personnel and Training issued an office memorandum regarding the implementation of the Mandal Commission's recommendation। तो ये एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट था, ये जो कि एक सिंगल डे में नहीं हुआ था, उसके लिए तकरीबन 1 साल टाइम लगा था दोनों हाउसेस में पास होकर प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक लंबा समय लगा था, एक लॉन्ग चेन ऑफ जो कि इवेंट्स यहाँ पर पास होकर इस सिस्टम्स को, इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया गया था। देन देखो, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द पीपल। तो ये तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एंड वी सॉ दैट सेवरल पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, देन द प्राइम मिनिस्टर, देन द कैबिनेट मिनिस्टर्स, देन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द सेक्रेटरी, ऑल दिस पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बट what will be happen, जैसे कि हमने देखा on 13th August 1990 office memorandum issued by the Department of Personnel and Training by the Secretary of Department of Personnel and Training on the behalf of Government of India, and according to this office memorandum the recommendation of the Mandal Commission was implemented। But the thing is that what was happen after that, what was the reaction of the people after that, after the implementation of the Mandal Commission's recommendation। तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था, तो वो कह रहा है देखो, it was most hotly debated issue in the country। That means after the implementation of the Mandal Commission's recommendation, this recommendation and this decisions which was taken by the government of India was hotly debated issues in the country। तो पूरे कंट्री में, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, after the implementation of the Mandal Commission's recommendation a turmoil situation is occurred in all over the India। तो पूरे इंडिया में एक टर्मोइल सिचुएशन क्रिएट होने लगा, एक टर्मोइल सिचुएशन जो कि क्रिएट हुआ था। इसी डिसीजंस के बारे में लोगों ने अलग अलग स्टेट में, अलग अलग दुकानों में, शॉप में जो कि डिस्कशन करने लगे, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स वेयर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस रिलेटेड विद दिस इश्यूज। एज यू नो, डेफिनेटली सम पीपल स्टार्टेड supporting this decisions which was taken by the government, and some peoples were affected by this decision, they started opposing the decision। so newspaper magazine में ये decisions के बारे में खबर जो कि प्रिंट होने लगा, और लोगों ने अपना अपना ओपिनियंस भी, जो लोग थे, अलग अलग लोग इसके बारे में, इस डिसीजंस के बारे में अपना अपना ओपिनियंस भी देने लगे, और धीरे धीरे ये जो इशू था ये और भी बढ़ने लगता है। इट लेड प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ बिकेम वायलेंट। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो लोग, डेफिनेटली दोज पीपल हु आर अपोजिंग दिस डिसीजंस व्हिच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन। तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको विरोध करके भी काउंटर प्रोटेस्ट किया गया। एंड कभी कभार ये प्रोटेस्ट दोनों ग्रुप की प्रोटेस्ट, सपोर्टर्स और अपोजर दोनों के बीच में प्रोटेस्ट होने की वजह से कभी कभी ये प्रोटेस्ट जो कि वायलेंट भी हो जाता था, एक रिएट की सिचुएशन भी कभी कभार क्रिएट हो जाता था। इट अफेक्टेड द थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इस एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि जो कि एक जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी ये अफेक्ट पहुंचाने लगा इस डिसीजन की वजह से। सम फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी द रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, through this those communities can reach at the top of the society। That means those who are get benefited from this decision of the government, now they are started, as I told you, that they are started supporting this decision। तो उनका ये लोग कहना था, कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ लोग ये सोचते थे कि बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी, सोसाइटीज़ में जो इनइक्वालिटीज़ है उस इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए और बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी को मेनस्ट्रीम सोसाइटी में
में शामिल करने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो कि रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी था। लेकिन सवाल ये है, क्या सही में सच में रिजर्वेशन आफ्टर 75 ऑफ इंडिपेंडेंस वी रियली नीड द रिजर्वेशन सिस्टम? सो डेफिनेटली अगर हम उसी रीजन के पीछे जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे जिन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया था, अगर उसी रीजन के पीछे जाएंगे तो हमें ये ज़रूरी लगेगा कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है और रिजर्वेशन सिस्टम रहना भी ज़रूरी था। ओके, ज़रूरी भी है। अगर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं रहेगा तो जिस तरह जो लोग सोशली हो, एजुकेशनली हो या कास्ट बेसिस में पीछे रह गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम की सोसाइटी में शामिल कभी भी नहीं हो पाएंगे या अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो उसी वजह से रिजर्वेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि बैकवर्ड क्लासेस की कम्युनिटी हो, लोअर कास्ट की कम्युनिटी हो, उनके मेन स्ट्रीम की सोसाइटी में शामिल करने के लिए, उनको अपर स्ट्राटा में अपर कास्ट पीपल के साथ इक्वाली मेंटेन करने के लिए जो कि क्या चाहिए, रिजर्वेशन सिस्टम नेसेसरी होता है उस वजह से। सो अदर्स फेल्ट दैट इट वुड मेक इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। तो कुछ लोगों ने कि कुछ लोगों का ये भी कहना था, कुछ लोगों का ये भी सोचना था दैट इट वुड मेक इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा उसमें इनइक्वालिटी ये क्रिएट करेगा, इट लीड टू इनइक्वालिटी इन जॉब अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली जो एक्चुअली हकदार हैं उनको जॉब नहीं मिलेगा, जो लोग हकदार नहीं हैं उनको जॉब मिल जाएगा। तो उस वजह से कुछ लोगों ने उसको विरोध भी किया। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे वुड बी मोर क्वालिफाइड। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा हो सकता है हम ज़्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिजर्व कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिलेगा, और जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, जो लोग कम मार्क रखते हैं, उनको भी नौकरी मिल जाएगा। तो उस वजह से जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने उसको अपोज किया, और जो लोग इससे बेनिफिटेड होने वाले थे वो लोग, उन लोगों ने उस डिसीजन को सपोर्ट भी किया। सम ऑफ देम कंसिडर दैट इट वुड मेक हैम्पर द नेशनल यूनिटी। सो सम पीपल ऑल्सो फेल्ट दैट इट मे बी हैम्पर टू द नेशनल यूनिटी। तो जो नेशनल यूनिटी है, हमारा जातीय एकता है, तो ये एकताओं को, यूनिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा लोगों का कुछ लोगों का सोचना था। क्योंकि सम पीपल फेल्ट दैट इट मे बी डिवाइड द सोसाइटी ऑन डिफरेंट बेसिस, इट मे बी डिवाइड द पीपल ऑन डिफरेंट ग्रुप्स, सो दैट्स वाई इट मे हैम्पर द नेशनल यूनिटी। तो उस वजह से उन लोगों ने कहा कि ये नेशनल यूनिटी को, एकता को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सम पर्सन्स एंड एसोसिएशन अपोज दिस एंड फाइल सेवरल केसेस इन द कोर्ट्स। Some individual persons and some other non-governmental organizations filed several cases in both Supreme Court as well as in different state high courts. तो अलग अलग पीपल्स ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इस डिसीजंस को विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी बहुत सारा केस भी उन्होंने फाइल किया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बॉन्स्ड ऑल दिस केस टुगेदर। और जितने सारे केस हुआ था स्टेट लेवल के हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे केस को सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठा किया, और उसके बाद हियरिंग स्टार्ट होता है। दिस केस वाज नोन एज द इंदिरा स्वाहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो हर एक केस को कुछ नाम दिया जाता है। तो इसी तरह ये जो केस हुआ था रिगार्डिंग टू अपोजिंग द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द अपोजिंग टू द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन, तो ये जो केस हुआ था उसका नाम रखा गया था इंदिरा स्वाहाने। मतलब इंदिरा स्वाहाने एक पर्सन थे जो कि लीडिंग कर रहे थे इस केस को। तो इंदिरा स्वाहाने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इंदिरा स्वाहाने एंड अदर्स वर्सेस, एक तरफ से इंदिरा स्वाहाने एंड अदर पीपल दोज हु आर फाइलिंग द केसेस इन द कोर्ट्स, वो लोग थे, और दूसरे तरफ वो लोग थे, वो थे कौन से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। तो दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में केस की हियरिंग किया गया। 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्ड द आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स। तो इंदिरा स्वाहाने जो जिन लोगों ने केस किया था उनकी तरफ को भी कोर्ट ने, उनकी जो भी कहना था उनको भी सुना, और गवर्नमेंट की जो भी सफाई देना था, गवर्नमेंट को जो भी कहना था उसकी बातें भी कोर्ट ने वहाँ पर आर्गुमेंट्स को भी सुना। बाय मेजॉरिटी ऑफ द जजेस in 1992 declared that this order of the government was valid and asked the government to modify its original order. So finally in 1992
the Supreme Court declared its order. तो उन्होंने अपना ऑर्डर डिक्लेयर किया, एंड उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, दैट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वाज वैलिड। तो उन्होंने वो जो डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिया था उसको वैलिड ठहराया, सही ठहराया, लेकिन उसमें उस ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया। Also, the Supreme Court issued an order to Government of India to modify the decisions on the recommendations of the मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया। तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिया? इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेटिंग रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो वेल टू डू फैमिली है, जो रिच फैमिली होंगे, उन रिच फैमिली को इस फैसिलिटीज जो कि रिजर्वेशन फैसिलिटीज जैसे नहीं मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, और इस तरह का मॉडिफिकेशन जो कि उस डिसीजन में, उस लॉ में करना पड़ेगा। सो आफ्टर दैट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन September 8, 1993। सो वो 2 साल, जो कि 2-3 साल बाद, ओके, 1990 में हुआ था, फिर 1993 September 8 में फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अनदर ऑफिस मेमोरेंडम इशू करते हैं, और जो पहले जो ऑर्डर इशू किया गया था उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑफिस मेमोरेंडम द persons who belongs to the well-to-do family, they are mostly excluded from getting the reservation facilities। तो उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो well-to-do family मतलब जो रिच पीपल थे, जिनका फैमिली इनकम एक सर्टन स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा था, उन लोगों को एक्सक्लूडेड कर दिया गया। अगर इसी कम्युनिटी के कुछ बच्चे तुम में से होंगे तो तुम लोगों को पता होगा कि हमारा ओबीसी एससीबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर इंप्लीमेंट किया गया है या यूज किया जाता है। इवार्ड, ये जो दोनों इवार्ड यूज किया जाता है। क्रीमी लेयर उनको कहा जाता है जिनका इनकम होता है वो एवव, उसी जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है उससे एवव इनकम होता है, तो उसको क्रीमी लेयर में माना जाता है। और उन लोगों को, दोज हु आर कमिंग अंडर द क्रीमी लेयर ग्रुप, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द रिजर्वेशन। तो उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और जो लोग नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, जिन लोगों का इनकम गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया इनकम स्लैब से कम होता है, उन्हीं लोगों को ये रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा जो कि नया ऑर्डर इशू किया गया कब? September 8, 1993 को। So this is all about, then we saw that who are the decision maker and what are the response of the people after the implementation of the Mandal Commission's recommendation. We had already discussed about them. Then at last I want to ask you some questions. The first questions for you, that who is the highest authority of the country, or हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर मेरा जो सवाल है कि इंडिया की, जो इंडिया जैसे कंट्री के हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होते हैं, या हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं। सो डेफिनेटली द प्रेसिडेंट, आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन आवर कंट्री और इन इंडिया। माई सेकेंड क्वेश्चन इज दैट who is the head of the government? As I had already told you in our today's class that prime minister is the head of the government. प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं, वो गवर्नमेंट की हेड होते हैं। माई थर्ड क्वेश्चन इज दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस। तो ये भी मैंने तुम्हें आज बताया that our parliament of India consists of 2 houses. The first one is known as the Lok Sabha and the second one is known as the Rajya Sabha. So several other questions you may get from this topic. So you can just read the topic and if any questions, then feel free to ask in the comment section. Thank you very much.